Good afternoon class. Yesterday I told you about the organs of digestive systems, the organ which participate in the process of the digestions, that is mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, and come next to the large intestine. This red cord-like structure is figure of large intestine. It is about 1.5 meter in adult. So this large intestine, the undigested food is get transferred to the large intestine. From there large intestine is moved towards the rectum and finally move out from the body through the anus. To the next page in your book, page number 33. As I told you, there are various glands which helps in the process of the digestions. Why all these are called glands? Because they secrete a juice. This juice helps in the digestions. The first is your salivary gland. The mouth has 3 pair of salivary glands. It has 3 pair of salivary glands. You can see 2 salivary glands here below the tongue and 1 in the behind the tongue. As I told you yesterday, there are some glands which secrete enzymes or the juice, and these enzymes and juice help in the process of the digestions. For an example, that is salivary gland which is present in our mouth. This salivary gland produce a saliva, and this saliva moisten our mouth and help in chewing the food. Stomach also produce a gastric juice. There are present gastric glands, and these gastric glands produce a gastric juice, and this gastric juice help in the process of the digestion. It break down the food particle. Small intestines also have some enzymes which help in the process of digestions. So they secrete the enzymes, and that enzymes help in digestion. That are called digestive enzymes because they help in the digestion. So the enzymes which is produced by the small intestines are called digestive enzymes. Next is pancreas. Pancreas produce a pancreatic juice. Pancreatic juice or insulin. So pancreatic juice or also help in the process of digestion, and liver produce a bile juice. It produce bile. So you can see here there are several types of glands which produce different types of enzymes and the juices, and these enzymes and juices help in the process of the digestion. Look at the figure, their mouth, and these are salivary glands which produce in the mouth. Okay, now come to the next, stomach. The lining, there are million of glands present in the lining of the stomach, and these gastric glands produce the gastric juice. After that, food goes to the intestine. The intestinal lining also produce some enzymes that are called digestive enzymes which digest the food. Most of the digestion of foods occur in the small intestines. Pancreas. This is a pancreas, and this pancreas produces a pancreatic juice. At this figure, the bile is secreted by the liver. And it is stored in the gallbladder. How it stored in the gallbladder? You can see here a green pipe-like structure attached to the liver. यहाँ पे ग्रीन कलर का पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक लीवर से अटैच है. तो लीवर में जूस बनता है, वो क्या होता है, इस पाइप के थ्रू किस में आ जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है. फिर इस गॉल ब्लैडर को देखेंगे, यहाँ पर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट से कनेक्टेड है, डियोडनम. मैंने बताया था वो पार्ट जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है. दिस पोर्शन इज कॉल्ड डियोडनम, द अपर पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये आपका क्या है, गॉल ब्लैडर स्मॉल इंटेस्टाइन में डियोडनम से अटैच है. तो इसी के थ्रू क्या होता है, बाइल जो होता है डियोडनम में क्या करता है, एंटर करता है. एंड दिस ट्यूब you can see there is a tube which is connected between the gallbladder and the duodenum. So this tube is called bile duct. It's clear to everyone that how many organs participate in the process of the digestions and the number of glands which help in the process of the digestions. Now come to the next, how the process of digestion occurs stepwise in our body. Next is process of digestion.
So how process of digestion in our body? First, when we inject the food in the mouth, so the digestion occurs in our body first in the mouth. First, first the food goes to our mouth. In the mouth, you know that there salivary glands are present which produce the saliva, and this saliva contain an enzyme. That enzyme is known as amylase, and this amylase break down the starch. The process of digestions. The first, when we inject, in the process of the injections, we intake our food in our mouth, and through the, we know that the salivary glands are present in our mouth, and these salivary glands produce the saliva, and this saliva contain an enzyme. That enzyme is known as amylase. So what is the function of this amylase? This amylase break down the starch present in the food. जो आप फूड खाते हो उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट है उस स्टार्च को क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है. आफ्टर डैट उसके बाद फूड हमारा किस में जाता है, फेरिंग्स में कोई भी आपका जूस या वो नहीं होता. इसोफेगस में भी कुछ नहीं होता. इट्स ओनली अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करता है, फूड को पास कराता है थ्रू द स्टमक. आफ्टर डेथ ये फूड गोज टू द स्टमक. नाउ मैंने आपको बताया था स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक जूसेस. तो इस गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है, दिस स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक जूस. और ये गैस्ट्रिक जूस में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, डेट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड लाइपेज एंड पेप्सिन. तो stomach contain a gastric juices, and these gastric juices contain a hydrochloric acid, lipase and pepsin enzymes. So what is the function of this HCl, that is hydrochloric acid, lipase and pepsin? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक द फूड एसिडिक. ये एसिड है तो फूड को क्या करेगा, इट मेक्स द फूड एसिडिक. ओके, एंड सो दैट द गैस्ट्रिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट, एंड एसिड ऑल्सो किल जर्म्स. ये फूड को एसिडिक कर देगा. एसिडिक करने से क्या होगा, जो एंजाइम्स होंगे उस पर एक्ट करना शुरू करेंगे. एंजाइम्स क्यों एक्ट करेंगे, फूड को डाइजेशन करने में. ठीक है, और इस एसिड की वजह से क्या होता है, जो आपके जर्म्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, किल और मर जाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट गैस्ट्रिक लाइपेज. इस गैस्ट्रिक लाइपेज का वर्क क्या है, गैस्ट्रिक लाइपेज ब्रेक डाउन फैट्स. फैट को ब्रेक डाउन करता है गैस्ट्रिक लाइपेज सिंपल फॉर्म में. ठीक है, और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेप्सिन. पेप्सिन किसको ब्रेक डाउन करता है, इट ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स. पेप्टाइड्स इज द सिंपल फॉर्म ऑफ द प्रोटीन. इट ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स. क्लियर. सबसे पहले आपके माउथ में गया, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, और उस सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है. ये अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है. उसके बाद ईसोफेगस और फेरिंक्स में तो कोई एंजाइम्स या गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो आपका डाइजेशन कहाँ पे जाएगा, फिर स्टमक में. उसके बाद फूड जब स्टमक में पहुँचता है तो वहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं. इन गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, HCl, लाइपेज एंड पेप्सिन. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, फूड को एसिडिक बनाता है, और जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको किल कर देता है. फूड एसिडिक कहने से क्या होता है, जो पेप्सिन और लाइपेज और पेप्सिन एंजाइम्स हैं वो फूड पर ऐड करना शुरू कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं. तो लाइपेज किस पे एक्ट करता है, जो फैट प्रेजेंट होता है फूड में उस पर एक्ट करता है. और पेप्सिन किस पे एक्ट करता है, प्रोटीन को. यानी लाइपेज फैट का डाइजेशन करने में हेल्प करता है और पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. अब इतना होने के बाद फूड किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन. इट गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन. As I told you, the small intestine has three parts, that is duodenum, jejunum and ileum. Now the first food come to the duodenum, the upper part which is connected to the stomach. That part is known as duodenum, and this part, this portion
of the that is known as duodenum, and this duodenum is connected to the stomach and also as well as to the gallbladder. This pipe-like structure that is known as bile duct, and this bile duct connected the gallbladder to the duodenum. So what are the enzymes? Which enzymes present in the duodenum which have? So the enzyme which is present in the duodenum, that are pancreatic amylase, trypsin, and pancreatic lipase. क्या हुआ, जो आपका डाइजेस्टेड फूड था वो किस में गया? डिओडेनम में। स्टमक के बाद किस में आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट है जिसे हम बोलते हैं डिओडेनम। उस डिओडेनम में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड पैनक्रियाटिक लाइपेज। अब अमाइलेज आपका यहाँ पे भी था, माउथ में प्रेजेंट था। इसने किसका डाइजेशन किया था? डाइजेशन ही किया था, किसको ब्रेक डाउन किया था? स्टार्च। इट मीन जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है वो भी किसको ब्रेक डाउन करेगा? स्टार्च। इट ब्रेक डाउन द स्टार्च। स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन किया? इनटू शुगर। ठीक है, एंड दैट शुगर इज maltose एंड अदर शुगर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट अनदर एंजाइम ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन का क्या वर्क है? ट्रिप्सिन का वर्क क्या है? आपका जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है स्टमक में तो थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन प्रॉपर डाइजेशन या प्रॉपर ब्रेक डाउन किस में होता है? जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो प्रोटीन जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन ने किसमें? पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन। जो आपका प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो आकर स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ है, वो किसके थ्रू हुआ? ट्रिप्सिन के थ्रू। इसने प्रोटीन को पेप्टाइड्स में डाइजेस्ट किया। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्टाइड्स। आपको बताया था पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होता है। नाउ नेक्स्ट इज लाइपेज। लाइपेज एंजाइम ने किसका डाइजेशन किया था? इन द स्टमक, दैट इज फैट। तो पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है? फैट का डाइजेशन करता है। इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? फैटी एसिड्स। क्लियर? डिओडेनम में इनका डाइजेशन हुआ। अब डिओडेनम के बाद किसी जिजनम में गया। जिजनम के बाद फिर किस में चले जाएगा? दैट इज गोज टूवर्ड्स द इलियम। इलियम इज द पार्ट विच इज कनेक्टेड फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। वो पार्ट जो आपका लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, वो पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको हम क्या बोलते हैं? इलियम। नाउ व्हाट? इलियम में जाने क्या होगा? जो आपके एंजाइम्स, अब इलियम में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? इलियम में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं पेप्टाइडेज, दैट इज पेप्टाइडेजेस एंड maltase। अब जो आपका डिओडेनम में डाइजेशन हुआ शुगर का, अब प्रॉपर जाकर किस में हो जाएगा? फिर से ये माल्टेज कन्वर्ट हो जाएगा। माल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। फाइनल हो गया। ये ग्लूकोज हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जो पेप्टाइड्स हुआ था कन्वर्ट, पेप्टाइडेजेस एंजाइम, नाम से देखिए पेप्टाइड्स और पेप्टाइडेजेस नाम मिलते जुलते हैं। माल्टोज एंड माल्टेज, केवल ए और ओ का डिफरेंस है। तो माल्टोज को कौन ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है? माल्टेज। और पेप्टाइड्स जो आपके प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन जो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हुए हैं, पेप्टाइडेजेस किस में कन्वर्ट कर देता है? उसे अमीनो एसिड। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉल सबसे छोटी यूनिट जिसे हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में हो जाती है, और जो फैट होता है आपका फैटी एसिड में। तो यहाँ पे ऑलरेडी फैटी एसिड में कन्वर्टेड था। तो जो आपका इलियम में गया है, इलियम में माल्टेज और पेप्टाइडेजेस प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? शुगर या जो स्टार्च आपका प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और प्रोटीन को जो पेप्टाइडेजेस में कन्वर्ट हुआ उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी जो प्रॉपर डाइजेशन होता है आपका सबका, वो कहाँ पर जाकर होता है? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऊपर क्या होता है? फूड ब्रेक डाउन होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और प्रॉपर ब्रेक डाउन कहाँ पर होता है? जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन। जब फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड एब्जॉर्ब भी होता है।